Hi, I am Syed Rashid. You are watching Ahlebad High School and Junior College YouTube channel. Here I am taking care like physics, chemistry and mathematics for higher classes. Welcome to my video to all students as well as viewers. Today just we are continuing our Maths 7th class chapter 6 ratio application, and on today's session or today's topic we will going to come across with an exercise number 3. Hope you have done well in your exercise number 1 as well as exercise number 2. Make sure that you need to put few effects from your side if you want to learn maths, because all the student and viewers, you can understand that in an exercise it might given you problems like 10, 12, 15, 16. On the other hand, these problems are somewhat related, interlinked with, like that means if you are visualizing 15 question in your exercise, so the questions is somewhat related. Only if you learn 5 question among that 15 question means you can able to solve all the 15 question. So here that's only I am doing. I am giving you the concept. You have to more work on the thing which I have giving you. So let us begin our class. Now for exercise number 3, question number 1, the problem question I am putting on your screen. You need to just listen carefully. After that I will going to solve. Okay, listen carefully. A length of a bacteria enlarged 50,000 times attains a length of 5 centimeter. What is the actual length of the bacteria if the length is enlarged 20,000 times only? What would be its enlarged length? That means given, what it is given, like I am writing here, given. Okay, given means the length of bacteria. Okay, LENGTH, length of bacteria, okay, is 50,000. Here it is times, 50,000 times. Okay, if its length at this stage, if its length is 5 centimeter, then what would be LENGTH, length of bacteria, if here instead of is, I need to write like if 20,000 time, okay, increases, or 20,000 time, as well as what is the actual length of bacteria, ACTUL, actual, LENGTH, length of bacteria, how much, this is also how much. So what I am doing, listen carefully, I am just writing in the pattern. Okay, pattern is nothing but, suppose I am writing here 50,000, okay, 50,000 is equals to like 5 centimeter, then 20,000 is equals to how much, that is instead of how much, let's say it is an x. After that what we have to do, we have to just cross multiply the thing. So I am just cross multiplying this into this into this. Here I have to write like 20,000, not 2,000. So what it will become like 50,000 x is equals to 20,000 into 5. What we will get, like 1 lakh. Am I correct, all the student and viewers? If you multiply this, 5 zeros are 0, 5 zeros are 0, 5 zeros are 0, 5 zeros are 0, 5 twos are 10. So it will be like 1 lakh. So x is equals to 1 lakh by 50,000, isn't it? 0 0 cut, 0 0 cut, 0 0 cut, 0 0 cut. It become like 10 by 5, 5 on the 5 twos are. So x is equals to 2 centimeter. What is 2 centimeter? If its length increase by 20,000 times, then what is the actual length of bacteria? For actual length of bacteria, you can see here, actual length, ECTUAL, actual, LENGTH, length of bacteria is equals to like 2 by 20,000. Why 2 by 20,000, all the student and viewers? Because we have to just multiply the this answer, sorry, divide this answer with the 20,000 time, so that we will get the actual length of bacteria. So here if I am marking 0 means it will become like 0.2,
after calculating this we will get like 0 point. Okay, I am doing rough work here first, after that we can go ahead. Look at here, 2 by 20,000. When I am marking this 0 means it will become like some 0.2. okay, 0.2 by 2000 is nothing but when I mark here is 0.02 by 200 it will become. Next step it will become like if I am marking this means 0.002 by 20. After that what it will, if I am marking this means 0.0002 by 2, 2 ones are 2 ones are. So the actual answer we will get in this is nothing but I am writing here is equals to 0.1231 centimeter. You need to write the unit here compulsory. So hope you understood. Now the time to learn in हिंदी. अब हिंदी में समझने की बारी है. देखिए एक लेंथ ऑफ बैक्टीरिया है, उसकी बैक्टीरिया की लेंथ को क्या कर रहे हैं 50,000 टाइम इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा के दिखा रहे हैं या फिर बढ़ा दे रहे हैं अपन. तो कितनी हो रही हो 5 सेंटीमीटर हो रही. ठीक है, अगर उसकी लेंथ 20,000 टाइम बढ़ा के दिखाएंगे तो ऑब्वियसली कैसा होता, तो क्या होता एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया क्या होता मालूम करना है. सबसे पहले ये देख रहे हैं हम what would be the length of bacteria if 20,000 अगर बढ़ के है. तो देखिए 5,000 इजिकल्स टू 5 सेंटीमीटर हो गया, 20,000 इजिकल्स टू x से हम आपको मालूम नहीं है तो हम x सेंटीमीटर सपोज करें. तो ये x इंटू 50,000 क्या हो गया 50,000 x होता. ये 5 इंटू 20,000 कितना होता 1 लाख होता. तो अब x अपनी जगह पे है, 50,000 डिवाइड में चले जाएगा. यहाँ पे 4 0 कट हो गए तो हमारे पास 10/5 बचा था. 5 1 जा 5 2 जा हमारा आंसर आया. तो x इजिकल्स टू 2 सेंटीमीटर. ये क्या हो गया, अगर उसको 20 सेंटीमीटर बढ़ा के दिखाए तो उसकी एक्चुअल लेंथ क्या हो सकती बोल तो आप 2/20,000 कर सकते, या फिर और एक आपका आंसर रहता है. सिंपली आप क्या कर सकते मालूम 5/50,000 भी कर सकते आप. वो भी अगर आप करके देख लीजिए आपको 0.0001 सेंटीमीटर आता. सो डिपेंडिंग ऑन योर, बिकॉज इट इज आस्किंग 2 थिंग्स हियर कि अगर 20,000 टाइम पे हुआ तो क्या होगा और वो हुआ तो क्या होगा, इसीलिए मैंने ऐसा कराया. दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी बट यू हैव टू प्रैक्टिस मोर देन 1 टाइम. ऑलरेडी आई लाइक फ्लैश द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन पे मैंने क्वेश्चन दिखा दिया था रीड करता हुआ. अब आपको सिर्फ आंसर क्वेश्चन, वो थोड़ा सा वीडियो को बैक ले ले, आप पॉज करके पहले क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए. आफ्टर दैट ये आंसर को आप 3 से 4 वक्त प्रैक्टिस कीजिए सेम टाइम. So surely you'll get in your mind. And here also you need to write x is equals to 2 centimeter. Here also 0.001 centimeter. So this is question number 1 done. Now question number 2 also I am putting on your screen. Now the time to look at your screen. जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको observe the following table and find if x is directly proportional. यानी कि आप फॉलोइंग टेबल देखिए और फाइंड कीजिए कि इफ़ x इज डायरेक्ट यानी x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं है. तो यहाँ पे आपको 3 टेबल्स दे दिए गए x y लाइक और x y यानी 3 अलग अलग टेबल्स दे दिए गए हैं. तो आप ये टेबल्स अच्छे से देख के पॉज करके वीडियो को क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए ताकि हम आगे का हम आंसर करेंगे. सेकेंड वन सॉल्व. आप देख सकते फर्स्ट वाला क्या है, आप देखिए x और y की अगर बात करेंगे तो पहले x में 20 था, फिर 40 हो गया, 17 था 34 हो गया, 14 था 28 हो गया. तो कुछ इस तरीके से ये हो रहा है. और 8 था 16 हो गया, 5 था 10 हो गया, 2 हो गया 4 हो गया. तो यहाँ पे बोलेंगे फर्स्ट वाले में यस. ठीक है, x इज डायरेक्टली DIRECTLY डायरेक्टली प्रोपोर्शनल PROPORTIONAL प्रोपोर्शनल टू y एंड x इज इक्वल्स टू 2y. यहाँ पे x की जो वैल्यू होती है वो 2y होती है. आप देख रहे हैं कि x को जब आप डबल कर रहे हैं तो ही आपको आंसर आ रहा है. यानी कि लाइक x इज इक्वल्स टू 2y हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर हम जी हाँ x इज इक्वल्स टू 2 इंटू y तो ये उल्टा और डबल हो जाता है. यानी कि आप 2 इंटू, तो यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 2x हो जाएगा. सो आई एम जस्ट चेंजिंग माई पैरामीटर्स. y इज इक्वल्स टू 2x हो जाएगा. अब एग्जाम्पल ले लीजिए आप, अगर y आपके पास सपोज 40 है, सपोज x कितना है यहाँ पे, वही बॉक्स में आप देख सकते 20 है, तो क्या हो जाता है आपको लाइक 2 इंटू
20 कितने हो जा रहे हैं आपको 40 हो रहे हैं ना। तो यहाँ पे y इक्वल्स टू 2x हो गया। वेरस सेकंड और थर्ड आपको आंसर में सिंपल लिख देना है, यहाँ पे नो, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं बन रहा x और y, क्योंकि 6 है तो 4 है, फिर 10 है, 8 है, 14 है। अच्छा जी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको बोलते हैं वो भी देखेंगे। अगर आपके पास दो क्वांटिटीज है, ठीक है, एक क्वांटिटी अगर बढ़ रही है उसके साथ साथ अगर दूसरी क्वांटिटी भी अगर बढ़ रही है तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अगर आपके पास दो क्वांटिटीज है, एक क्वांटिटीज यानी कि आपको बढ़ रही है, दूसरी अगर घट रही है, तब आपको क्या हो जाएगा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, इफ़ वी हैव हीट, अगर हीट बढ़ेगी तो टेम्परेचर क्या होगा, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर हीट बढ़ेगी तो टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ता रहेगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, यानी हीट बढ़ते गए जैसा टेम्परेचर भी बढ़ता। वेरएज हीट एंड कोल्ड, अगर हीट बढ़ गई तो कोल्ड क्या हो जाता, कम होना शुरू होता। वैसे कोल्ड और हीट में ले लिए तो कोल्ड अगर बढ़ गई तो हीट कम हो जाती। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई वर्ड। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स दो क्वांटिटीज एक साथ जो बढ़ जाते हैं उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहा जाता। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स एक क्वांटिटी बढ़ती एट द सेम टाइम दूसरी क्वांटिटी कम होते रहती। जैसा हीट एंड कोल्ड है, अगर हीट बढ़ गई तो कोल्ड को कम होना पड़ेगा, अगर कोल्ड बढ़ गई तो हीट को कम होना पड़ेगा। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये लोग। वेराज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की अगर बात करेंगे तो हीट एंड टेम्परेचर, ठीक है, यानी कि हीट अगर कितनी बढ़ी टेम्परेचर उतना बढ़ता। सेम केस आपको कोल्ड एंड टेम्परेचर भी रहता, जितना टेम्परेचर कम होगा उतना कोल्ड आपका बढ़ते रहता। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये टेबल में वही बताया जा रहा। फर्स्ट वाले में ये x यानी कि बढ़ रहा था तो y भी बढ़ रहा था, वेराज टेबल नंबर सेकेंड टेबल नंबर थर्ड में x यानी कि बढ़ रहा था, y का भी कम हो जा रहा था, ज़्यादा हो जा रहा था। वन मोर थिंग आईड लाइक टू रिकॉल कि टेबल नंबर थर्ड में जो इंक्रीजिंग क्वांटिटी है लेवल नहीं थी उसकी, यानी इरेगुलर था। रेगुलर कैसा था मैं भी आपको बताता हूँ। जैसा कि थर्ड वाले टेबल में आप देख सकते हैं कि x यानी कि कम था तो y बढ़ रहा था, 15 जाके 5 हो गया, फिर 8 जाके 24 हो गया, 12 जाके 36 हो गया। यहाँ तक तो ठीक है क्योंकि आप लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू 3x, ये 3 डब्बों का। लेकिन फोर्थ बॉक्स की अगर हम बात करें तो 15 जाके 60 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 4x हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में क्या हो रहा था, ये y इज इक्वल्स टू 3x रह रहा था अप टू 3 बॉक्स तक। कितने बॉक्स तक, 3 बॉक्स। लेकिन नेक्स्ट y इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 4x हो गया। 4x कहाँ तक हो गया, यानी कि बॉक्स नंबर 4 में भी वैसे ही है, बॉक्स नंबर 5 में भी वैसे ही है। लेकिन बॉक्स नंबर 6 एंड 7 में फिर 20 हो गया। 20 यानी y इज इक्वल्स टू आपको क्या हो गया, 5x हो गया। तो इसीलिए इसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं मानेंगे क्योंकि इसके अंदर फ्लक्चुएशन रह रहा, तो इसीलिए ये हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये आपका प्रॉब्लम नंबर 2 हो गया। प्रॉब्लम नंबर 3 ऑलरेडी आपके बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ हूँ मैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 बहुत आसान है, आप क्वेश्चन कॉपी कर लिए। फर्स्ट वाला ऐसा लिख दे के y इक्वल्स टू 2x लिख दीजिए, सेकंड वाला आप नो लिख दीजिए, यहाँ पे थर्ड वाला भी आप नो लिख दीजिए। अगर आप थर्ड वाले में रीज़न अगर लिखना चाह रहे हैं नो के बारे में तो आप ये रीज़न लिख सकते हैं कि y इक्वल्स टू 3x अप टू 3 बॉक्स, y इक्वल्स टू 4x लाइक 4th एंड 5th बॉक्स में रह रहा, फिर 6th, जी हाँ 4th एंड 6th और 7th बॉक्स में कुछ इस तरीके से रह रहा। टोटल 7 बॉक्स आपको दिए गए थे। तो आप ये कार्ड मैं रॉन्ग हटा देता हूँ, आप रीजनिंग में आप चाहे तो ये लिख सकते। सो लेट अस बिगिन आवर थर्ड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट कर लेंगे ना। Sushma has a road map with a scale 1 centimeter representing 18 kilometer. She drive on the road 72 kilometers. What would be her distance covered in the map? मतलब क्या है, सुषमा नाम की एक लड़की है जिनके पास एक मैप है। वो मैप क्या शो कर रहा है आपको, 1 सेंटीमीटर कितने 18 किलोमीटर तक का डिस्टेंस बता रहा है। तो उन्होंने 72 किलोमीटर्स तक क्या करे, ट्रैवल करे। तो डिस्टेंस कवर इन मैप, मैप में कितने डिस्टेंस कवर हो रहा, तो उसके लिए अपन लिख लेंगे यहाँ पे। आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल दिस स्पेस इज समवॉट लाइक स्मॉल टू solve the problem. My suggestion is first of all copy down the thing which is written on the board so that we can go ahead.
होप यू हैव कॉपीड, उम्मीद करता हूँ कि आपने कॉपी कर लिया है। अभी देखिए थर्ड वाले प्रॉब्लम का मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, थर्ड वाला सॉल्व। ओके, गिवन, ओके, GIVN गिवन 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू लाइक 18 किलोमीटर्स इन रोड है ये ROAD रोड, वेरास ये क्या रहेगा इन मैप में रहता है। वेरास शी कवर्स 72 किलोमीटर्स in road or on road, whatever you can say. Here on road we have to write this is an correct meaning. So x centimeter is the distance she covers. So what we have to do, just we can directly cross multiplying this. So we will get, I am writing, look at the word carefully here, 18 into x is equals to 1 into 72. So 18x is equals to 72, x is equals to 72 by 18, x is equals to here, if we are dividing 18 divided by 72 means 18 for the 72 we got. So यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो कि 18 को हम डिवाइड करेंगे, सर 18 का टेबल, in case if you don't know the 18 table, 4 here 4 is nothing but 4 centimeter, therefore what would be the her distance covering like map, her distance distance cover in map is 4 centimeter. So this is the sum, but once again I want to explain. 1 centimeter is equals to 18 kilometer, 1 centimeter in map is equals to 18 centimeter on road. X centimeter, we don't know the distance covered in map, so we are assuming as x is equals to 72 kilometers. So just we are cross multiplying 72 into 1 like 18 into x, we got 18x equal to 72, x is equals to 72 by 18, x is equals to 4 centimeter. If here we are finding any difficulty to multiply with like this method, because most of the student might not know the 18 table, and it is fact also, not only the student, most of the peoples, not only student, most of the people knows tables related to like 10, 12 like that. Up to 18 means it is somewhat difficult task. 18वां पहाड़ा याद रखना बोलते थोड़ा अलग टास्क रहता, तो उसके लिए आप ऐसा करिए, 2 9 दा 18 हो गया, 2 3 दा 6 हो गया, 1 बच गया, तो ये क्या हो गया 2 6 दा 12 हो गया। फिर आप 9 का टेबल तो याद होगा आपको, 9 1 दा 9 4 दा, ऐसा भी कर सकते, 4 सेंटीमीटर आपको आ गया। सो नाउ द टाइम टू कॉपी डाउन क्वेश्चन नंबर 3। अभी आप यहाँ से ही कॉपी कर लीजिए, फ्यू सेकेंड्स आप पॉज करते हुआ, क्योंकि आपको पूरा क्लियरली दिख रहा होगा थर्ड वाला सॉल्व, वेरास ये थर्ड वाला क्वेश्चन है। मैं इधर साइड आ जाऊँगा, तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको शायद क्वेश्चन भी दिख रहा है और आंसर भी आपको दिख रहा। पॉज कर लेके फ्यू सेकेंड्स के लिए आप क्वेश्चन प्लस आंसर लिख लीजिए। होप यू हैव कॉपीड। नाउ आई एम प्लेसिंग क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, लुक एट द स्क्रीन। जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ऑन ए ग्रिड पेपर ड्रॉ 5 स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंट साइज, राइट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन द टैबुलर फॉर्म, लेंथ ऑफ द साइड, पेरीमीटर एंड एरिया। यहाँ पे आपको 4 स्क्वायर्स ड्रॉ करना है, ड्रॉ करके उसकी लेंथ, पेरीमीटर और एरिया 3 चीज़ें आप लिख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट, फाइंड वेदर द लेंथ ऑफ द साइड इज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन आप पॉज करके कॉपी कर लीजिए, आंसर थोड़ा सा करा देता हूँ मैं। फोर्थ सॉल्व, फर्स्ट लेंथ, एरिया एंड व्हाट वी हैव विथ अस लाइक पेरीमीटर, लेंथ, पेरीमीटर, एरिया ऑफ लाइक स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5। Already you saw the question from screen, so I am just solving on a rough pattern. You have to draw the question, you have to copy the question from your screen itself. Isn't it? जो क्वेश्चन था वो आप यानी कि आपके स्क्रीन से कॉपी कर लीजिए। फिर फोर्थ सॉल्व लिखना है, लिख के जो आपने क्वेश्चन कॉपी किया था अगेन यू नीड टू कॉपी डाउन दैट बॉक्स, फिर से वो बॉक्स आपको कॉपी करना है। सपोज अगर एक स्क्वायर है समझिए, उसकी लेंथ है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, तो सपोज जी हाँ लेंथ अगर मैं 1 सेंटीमीटर ले लूँगा तो उसका एरिया क्या होता, जो स्क्वायर है उसका एरिया, एरिया का स्क्वायर के एरिया का हमारे पास एक फॉर्मूला रहता, ठीक है, वो क्या रहता, साइड इनटू साइड रहता। और वेरास पेरीमीटर किसे कहते हैं, ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, पेरीमीटर इज नथिंग बट सम ऑफ द
सम ऑफ दी ऑल लेंथ, LENGTH, लेंथ और सम ऑफ दी ऑल साइड्स ऑफ, जो ऑल साइड्स रहते उसको सम करना पड़ता, सम ऑफ दी लेंथ ऑफ, सम ऑफ दी ऑल लेंथ ऑफ साइड्स, पूरे साइडों के लेंथ। तो देखिए एरिया तो 1 × 1 1 हो जाएगा, पेरीमीटर 1 + 1 + 1 यानी 4 वक्त, एक स्क्वायर कुछ इस तरीके से रहता तो 1 1 1 1 बोल तो 4 हो जाता। वैसे सपोज लेंथ 2 सपोज करेंगे तो उसका एरिया क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, पेरीमीटर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसकी 3 सपोज कर लिए तो उसका एरिया 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है। और इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, लाइक 4 वक्त 3 करिए आप 12 हो जाएगा। अगर 4 करेंगे सपोज तो 4 4 16 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, लाइक आपको पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4 + 4 टाइम आपको प्लस करना पड़ेगा 4 को, तो हियर यहाँ पे 16 ही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम 5 सपोज करेंगे तो 5 5 25 होता, 5 को 4 टाइम वो करेंगे प्लस तो ये हो जाता आपको 20 इज इन 8। क्या आपको समझ में आ रहा, ये लेंथ 1 2 3 4 5 इन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में हमने लिया है। वेरास उसका एरिया क्या होता साइड इंटू साइड, 1 × 1 1, 2 2 4, 3 3 9, 4 4 16, 5 5 25। पेरीमीटर क्या होता ऑल साइडों को प्लस करना, तो 1 + 1 + 1 क्या होता 4 होता, 2 + 2 + 2 + 2 क्या होता 8 होता, 3 + 3 + 3 + 3 12 होता। वैसे 4 + 4 + 4 + 4 16, 5 को भी आप 4 वक्त प्लस करने पे 20 आ गया। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन पहला बोल रहा द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, फाइंड वेदर द लेंथ ऑफ द साइड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेरीमीटर इफ स्क्वायर। जो लेंथ ऑफ द साइड है पेरीमीटर से प्रोपोर्शनल है क्या डायरेक्टली। फर्स्ट जो पेरीमीटर है वो लेंथ से प्रोपोर्शनल है क्या। देखिए ये लेंथ है, ये पेरीमीटर है, तो अगर मैं लिखता हूँ सपोज P = 4L, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए अगर मैं कोई एक चेक कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे P मैं ले लेता हूँ 16, बॉक्स नंबर 4 का 16 = 4L। 4L मीन्स यहाँ पे 16 के उसमें कहाँ पे है देखिए 4 है, तो 4 4 16 = 16। वैसे ही अगर मैं ये 5th वाला बॉक्स ले लेता हूँ P = 4L, तो P कितना है मेरे पास 20 है, = 4 × 5 20 = 20। तो यहाँ पे आप लिखना है यस, ठीक है, लेंथ LENGTH, लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेरीमीटर। ये एक शॉर्ट फॉर्म होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताने का, क्रॉस मार्क के जैसा। तो ये आपका आंसर फर्स्ट वाला यस है, यानी कि प्रोपोर्शनल है। सेकंड वाले की हम बात कर लेंगे। सेकंड वाले की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे अगर A = मैं अगर 2L लिया तो क्या होता देख लेंगे, पहले क्रॉस चेक करेंगे A = 2L के मामले में। वेरास A = अगर मैं 3L लिया तो क्या होता वो भी देख लेंगे, और A = 4L लेने पे भी क्या होता देखेंगे। तो A = अगर मैं 2L लिया, ये हमारा एरिया है 9, ठीक है, 9 = 2L, 2 3 6, तो 9 = 6 नहीं हो सकता। सेम A 9 है, 9 = 3, यानी कि आप 9 = 3 × 3 बोल तो 9 हो गया। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी आ रहा, यहाँ पे देखेंगे A = 3 में क्या आ रहा, A = 16, 16 = 3 4 12, तो यहाँ नहीं आ रहा। तो यहाँ पे सेकंड वाले में आप बोलना है नो, यहाँ पे आंसर क्या है प्रोपोर्शनल नहीं आ रहा। सो बहुत आसान है, आप क्वेश्चन और आंसर कर लीजिए। सो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज नंबर 4। ओके, सो जस्ट वी विल गोइंग टू कंटिन्यू अवर दिस सेम मैथमेटिक्स in our next session. That's all about our today's session or today's class. You are watching Ahliabaiyat High School and Junior College YouTube channel. I am Sayyid Rashid, physics, chemistry and mathematics teacher for higher classes. Have a great time, maintain notes, practice more than one time. Thank you.